ओके बच्चों, सॉरी फॉर डिले। हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चालू करना चाह रहे थे जिससे कि आपको ये अवेलेबल करा सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट वन थर्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर, लास्ट वन थर्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, कुछ आइडिया है? तो हम लोग तो यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं ना, वी एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बाई 10 प्लस एक्स बाई 20 प्लस एक्स बाई 60। यही तो करेंगे ना बच्चों, है ना? सो दिस विल बिकम 3x होल डिवाइड बाई x इन ब्रैकेट, टेकिंग एलसीएम 16, यू विल हैव 6 प्लस 3 प्लस डिवाइड बाई 60। ओके, so x will get cancelled out, and finally you are going to get 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 60 into 3 divided by 10. So v average will become 60 into 3 divided by 10. So it will become 18 kilometer per hour. समझ गया बच्चा? Is it okay? Question number 4. Question number 4 is clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Question Yes. number 5. Yes, A sir. car moves from X to Y with a uniform speed Vu and returns to Y with a uniform speed Vd. The average speed of this sound trip is, this round trip होना चाहिए यहाँ पे बच्चा, this round trip is average speed आपसे पूछा है। Car travels from X to Y with a uniform speed Vu and returns to Y with a uniform speed Vd. Again ये same question हुआ क्या? X distance चला with speed Vu and X distance वापस है with speed Vy Vd. दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या हो गया बच्चा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो अगेन आपका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ वीडी इंटू वी यू डिवाइड बाई वीडी प्लस वी यू। ठीक है, हुएवर इज आज दिस क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको ये बात क्लियर होगी बच्चा कि इन दिस सिचुएशन इट इज बेसिकली द सेम सिचुएशन वेयर अ पर्सन और अ कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस with different speed, that is v1 and v2, x and x. So average speed will be 2 times of v1 v2 divided by v1 plus v2. ठीक है, the same question is here, but in this case a certain person that is moving or car that is moving from one place to another, returning back and returning back. ठीक है, in this question if average velocity was asked then it will be 0, है ना? सेम क्वेश्चन में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो दैट वाज 0, बट एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई थिंक आई मेड इट क्लियर विद। Yes, sir. Yes, sir. So next question number 7. Next is question number 7. During first 18 minute of a 60-minute trip, a car has an average speed of 11 meter per minute. What should be the average speed for the remaining 42 minutes so that the car is having an average speed of 20 meter per minute for the entire trip? Now average speed is given to you. What is formula for average speed? It's total distance traveled upon total time taken. Okay, it is total distance traveled upon total time taken. So if I say the first 18 minute it travels with a speed of 11 meter per minute. So distance traveled will be 18 into 11. Let us say in next 42 minutes it travels with a speed v. So distance traveled will be 42 into v, and this whole will be divided full time taken, that is 60 minutes, and finally you are going to get that average speed is 21 meter per minute. ठीक है, नाउ दिस इज टू बी सॉल्व। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चा, इसे कैंसिल कर सकते हैं किससे, 3 से, है ना? तो 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने को 7, यहाँ पे अपने को मिलेगा 6, एंड यहाँ अपने को मिलेगा 1 एंड 4। ओके, सो फाइनली we are going 7 6 ja 42, 420 is equal to 66 plus 14 v, that means
v is equal to 420 minus 66 डिवाइड बाई 40। ठीक है बच्चों, दिस विल बी 420 460 and you are going to get 454 divided by 14. Okay, then cancelling, you are going to get 7 2 2 7, then it is will be 321 17 32, I think. So your So answer should be 420 C. minus 66 is 354. Oh, sorry, 354 ना, 354, तो 177, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, then 37 5, फाइन, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर बेटा? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. Now coming to question number 8, a wheel of radius 3 meter। अच्छा, मेरी राइटिंग में कोई डिले तो नहीं हो रहा बच्चा आप लोगों को? No, sir. Okay. Now a wheel of radius 3 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of point of wheel initially in contact with the ground is। तो देखो, आपसे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट यहां से यहां रीच किया ना, तो दिस ब्लू लाइन विल बी द डिस्प्लेसमेंट, this blue line will be the displacement. Now to find out blue line, value of blue line, we must apply Pythagoras theorem through this triangle. Yes or no? Yes, we must Yes. apply Pythagoras theorem through this triangle. So what about this particular length? ये जो लेंथ है तो डायमीटर बन जाएगा ना, तो ये डायमीटर आपका हो जाएगा 6 मीटर के बराबर। नाउ व्हाट अबाउट दिस लेंथ? ये यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा भाई? तो ये लेंथ आपका हो जाएगा बच्चा, क्योंकि अभी तक हाफ हाफ रिम ही ऊपर गया है, मतलब पी जो है बस हाफ ऊपर गया है। दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये बन जाएगा अपना हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सिंस ये हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो गया, तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पाई इन मीटर्स। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे पीपी की जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम 6 स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर की पावर 1/2। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 3 पाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर मैं यहां से 3 को कॉमन करके बाहर निकालूं तो दिस विल बिकम 3 अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। दिस m शुड बी आउटसाइड द स्क्वायर रूट। क्लियर है बेटा? Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 8। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 टू 22। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। एक क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा चुका है, और बोलिए। 11 ही पूछ लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 टू 22। Sir, 21. 13, 16, 15, 19। चलिए अब इतना कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। A particle is moving with a constant velocity v in a circle. What is magnitude of average velocity after 1/4 rotation? देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन
with a constant speed v in a circle, what is magnitude of average velocity after 1/4 of rotation? So if I say this is the circle, this is the circle, and certain particle is performing motion with constant speed v on this circle. So first 1/4 of rotation पूछा जा रहा है, तो यही तो बात होगी ना बेटा, दिस विल बी आवर 1/4, है ना। तो 1/4 अगर ये है, तो तुम बताओ इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी ए बी, एंड ए बी विल बी इक्वल टू √2 ऑफ आर, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी क्या होगा Yes, sir. बच्चा, आर होगा। देन हाइपोटेन्यूज विल बिकम √2 आर। क्लियर हो गया। नाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी वी आल्सो रिक्वायर द टाइम। नाउ टाइम टेकन टू कवर distance from A to B will be 1/4 of the total distance, total time. Okay, so time taken to cover distance AB will be 1/4 of total time. So 1/4 multiplied with total time. What is total time? Total time is total distance upon total distance upon average speed, that is constant speed v. Now what is total distance to cover a whole circle? It is 2 pi r. So here it will be 2 pi r divided by v. ठीक है बच्चा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो होल सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल है, दैट इज 2 पाई आर। एंड किस स्पीड से चल रहा है, v। सो टाइम हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी टोटल, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। और क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/4, क्योंकि स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे 2 से ये 4 कट जाएगा, वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी लिखी जा सकती है, वी एवरेज विल बी √2r डिवाइड बाई √2r डिवाइड बाई पाई आर by 2v. Now r will get cancelled out and you are going to get 2 √2v by pi. 2 √2v by pi. So option C is our correct answer. समझा क्या बेटा। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 11 क्लियर हो गया सभी को। Yes, Yes. sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। A thief is running away on a straight road in a jeep moving with a speed 9 meters per second. A policeman chases him on a motorcycle moving at constant speed of 10 meters per second. If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meters, how long will it take for the police to catch the thief? ठीक है, कितना समय लगेगा पुलिस को थीफ को कैच करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ऐसे बनाऊं कि this is our, let us say this is our police P, thief T, and this is our police P. Now police P is moving with 10 meter per second and thief is moving with 9 meter per second, and distance between them is 100 meter. ठीक है, इज इक्वल टू 100 मीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, इनको कैच करने के लिए से कि ये दोनों कहीं यहां पे जाके एक दूसरे को कैच कर लेते हैं, यहां पे कहीं पे कैचिंग हो जाती है। तो इस डिस्टेंस को मैं बोल दिया x। ठीक है, या फिर ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x। ठीक, अब x चलने के लिए, x डिस्टेंस चलने के लिए थीफ के लिए, थीफ को अगर लगेगा टाइम t, तो पुलिस को वही डिस्टेंस नहीं चलना है, पुलिस को चलना है कितना बच्चा, पुलिस को चलना है x प्लस 100। तो सेम टाइम t में पुलिस चलेगा x प्लस 100। क्या मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, मैंने लिखा थीफ के लिए कि x डिस्टेंस चला 9 इंटू टी, है ना, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पुलिस ने क्या चला भाई, पुलिस ने पकड़ने के लिए चला x प्लस 100 डिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू
दैट विल बी इक्वल टू 10 × t। अब अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 + 100 इज इक्वल टू 10t। ठीक है, तो यहां से अपने को मिल गया t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। झंडा काढो तो, झंडा झंडा। बच्चा क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 12 जिसने किसी ने पूछा था, इज इट ओके? व्हाट इज हैपनिंग हियर? दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे ना। उस पॉइंट को पहुंचने के लिए अगर थीफ चलता है x डिस्टेंस, तो पुलिस को चलना पड़ेगा x + 100 डिस्टेंस। समझ में आया क्या? Yes. ना इसको एक छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको पुराना कुछ याद हो तो। जैसे कि हम लोग जानते थे ना कि अगर कोई दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो हम उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद आया क्या? दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो एक ट्रेन दूसरे के लिए धीमे चलेगा। कुछ ऐसा याद है? Yes. बच्चों ओके, Yes, तो अगर मैं बोलूं थीफ नहीं चल रहा, थीफ नहीं चल रहा है, तो थीफ के लिए पुलिस कितनी स्पीड से चल रहा होगा? क्या थीफ के लिए पुलिस चल रहा होगा विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना? अब बताओ पुलिस को थीफ को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करने की जरूरत है? क्या 100 मीटर? कितने स्पीड से? 1 मीटर पर सेकेंड से। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा क्या, 100 / 1, यानी कि Yes. 100 सेकेंड्स। तो ये भी एक तरीका है। ओके, Yes, sir. चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 डन हो चुका है। नाउ लेट अस मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, acceleration at rate f through a distance s, then continue at a constant speed for time t, then deceleration at the rate of f/2 to come to rest. If the total distance traversed is 5s, then अगर टोटल डिस्टेंस 5s है तब क्या होगा, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो पहले तो चला एफ एक्सेलरेशन से और कंटिन्यू किया। ठीक है, फिर कांस्टेंट स्पीड से टी टाइम के लिए ट्रेवल किया, देन डिसलरेशन किया f/2 से टू कम टू रेस्ट। सो हम यहाँ पे पहले इसका एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है बच्चा, 0 है। ठीक है, नाउ इट ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन f मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सर्टेन टाइम। फिर यहां पे पहुंचने के बाद ये टी टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, देन दिस विल बी सी, देन दिस विल बी सी। ठीक है, यहां पे चला, मतलब जो स्पीड यहां पे है वही स्पीड यहां भी होगी। ठीक है, एंड देन फाइनली इट रिटार्ड्स टू रेस्ट। तो इट डिसलरेट, दैट मींस अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, और कितना है, f/2। और कितना है, f/2। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात है, देखो, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f थ्रू अ डिस्टेंस s, then continues at a constant speed for time t, then as a deceleration at the rate of f/2 to come to the rest if the total distance covered is 5s। तो उन्होंने बोला हुआ है बच्चा आपको कि a से लेके d तक की दूरी, ये टोटल दूरी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, दैट इज 5s। ये दूरी उन्होंने बोली है, ए से बी की जो दूरी है ये बोल रहे हैं एस है, और टाइम टी बी सी जो है वो है टी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताएं, आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द टोटल इफ द टोटल डिस्टेंस, देन एस का रिलेशन टी के साथ, एफ के साथ क्या है। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन को देख लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन को समझ लिया। लेट अस स्टार्ट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी एंड एस। देखो बेटा, मेरा जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको समझें, तो तुम मुझे बताओ, अगर वो चला एफ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करके डिस्टेंस एस, ठीक है, तो फॉर सेम वेलोसिटी अगर वो एफ बाई टू एक्सेलरेशन से डिसेलरेट करेगा, एफ बाई टू से अगर वो डिसेलरेट करेगा, तो क्या उसे चलना पड़ेगा डिस्टेंस टू एस? यस और नो? यस सर। यस। Yes, sir. तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा टू एस बेटा? सी टू डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टू एस। तो अब देखो, बी से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? तो बी से सी की वैल्यू हो जाएगी 5s - 3s, यानी कि 2s। नाउ बी से सी ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बी से सी ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अगर मुझे पॉइंट बी पे जो स्पीड होगी वो पता चल जाए, तो क्या बी से सी जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो समझ में आ जाएगा? हाँ या ना? यस। नो, ए से बी चला एफ एक्सेलरेशन से और उससे डिस्टेंस लिया। तुम मुझे बताओ, जो स्पीड होगा पॉइंट बी पे, क्या मैं उसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ, है ना? लिख सकते हैं क्या इसे? बोलो बच्चों, ये समझा क्या? Yes. हाँ सर। कैसे लिख दिया मैंने इसे? ये हमने लिखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस से। तो एक्सेलरेशन एफ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2fs। ठीक है। नाउ तुम मुझे बताओ, b से c, फ्रॉम b टू c, क्या कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि v मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 2s, है ना? हम लोग लिख सकते हैं v मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 2s। तो अब यहां से अगर ध्यान से देखा जाए, तो v के लिए क्या लिखोगे आप लिखोगे v अंडर रूट ऑफ 2fs इंटू टी इज इक्वल टू 2s। ठीक है। सो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ f इंटू s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। नाउ दिस s विल गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ पे s बचेगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या s की वैल्यू लिखी जाएगी? s इज इक्वल टू 1/2 f t स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? Yes. क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है। कैसे हुआ, समझ में आ गया? मैंने इस क्वेश्चन को सॉर्ट किया है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? इस क्वेश्चन में आपको सी से डी पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? इसी से तो निकालेंगे। ये वी हो गया। अब अगर आपसे सी से डी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो अगेन आपको कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस टाइम पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है, और रिटार्डेशन आपको दिया है f/2 निगेटिव। ठीक है, समझ में आया क्या? तो अगर आप ये करके देखोगे तो आपको c से d की वैल्यू 2s मिलेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 इंटू f/2 इंटू s डैश, या फिर एस सी टी। दैट मीन्स यहां पे अगर देखा जाए 2 से 2 कट गया, तो एस सी डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एफ, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2fs डिवाइड बाई एफ। तो एफ से एफ कटने के बाद आपको एस सी डी मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्टली किया, वो एक कॉमन सेंस के जरिए किया कि अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन एफ है और 0 से v जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड v से 0 हो रही है, v से 0 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, और एक्सेलरेशन आपका f/2 है, तो डिस्टेंस आपको डबल ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। ओके। जिनको अभी भी प्रॉब्लम है तो दोबारा रिपीट करने को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक इट इज ओके नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। A particle constrained to move on a straight line path
it turns out it turns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 meter. Then which of the following statement about the motion of particle is false? आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा false हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। क्या अपनी पोजीशन पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है। Yes. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज Yes. 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर। क्या ये गलत हो गया? हाँ. Yes. तो हमारा हाँ ऑप्शन 15 का बी करेक्ट हो गया। ठीक है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया ना बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इफ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच डिस्टेंस इट इज गोइंग टू कवर। देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या आप लोग को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया गया था, एंड दैट वाज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई, यस और नो? बता बच्चों आपको ये फॉर्मूला? Yes, sir. यस। तो तुम मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और कहां से कहां तक मूव कर रहा है? क्या 0 से 144 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है? ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी 0 प्लस 144 डिवाइड बाई 2, एंड इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? क्या ये 72 किलोमीटर पर आवर हो गया बच्चा? ना, अगर आपको एवरेज स्पीड पता चल गई तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा? 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, क्योंकि हमें टाइम 20 सेकेंड दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 20, 18 4 जा, तो अपने को आंसर क्या मिलेगा बच्चा? 400 मीटर्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? इज इट क्लियर बच्चों? सर, 74 किलोमीटर में है ना? 72 किलोमीटर में है, तभी तो हमने इसे क्या किया, मीटर पर सेकंड में किया, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18। हाँ हाँ हाँ. ओके, so you get your answer 5/18 multiplied by 72, that is equal to 20 meter per second, and time given to you was 20 second. So total distance will be 20 into 20, 400 meters. Understood? Is that okay? This is simple Yes. and short method to solve this question. Otherwise, you are going to find out first acceleration, then you are going to apply the second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, which is somewhat longer. ठीक है, बात समझी क्या मेरी? हाँ सर. Okay. Now coming to question number 19. What is question number 19, bacha? Okay. The particle start its motion from rest under the action of a constant force. Under the action of a constant force. If the distance covered in first 10 seconds is s1, then what is the and that covered in first 20 seconds is s2. Then okay. तो ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ही केयरफुली समझना बच्चा। तुम मुझे बताओ, अगर एक बॉडी फ्री फॉल करेगी, तो उसके डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, है ना? और अगर मैं उसको Yes. कट कर दूं तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू टी स्क्वायर? बच्चा सही में समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. ना, इन दिस सेम क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो मैं कांस्टेंट फोर्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्या फ्री फॉल भी है? फ्री फॉल के टाइम पे क्या वेट जो बॉडी के ऊपर लग रहा है वो बदलता है? क्या नहीं बदलता। और क्या फ्री फॉल के टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है? तो हमने कहा हाँ होती है। और इसे याद रखना, ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes. Yes. नाउ मैं आपको एक रिजल्ट दे रहा हूँ, इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? क्या मैं s की वैल्यू में t की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो 5 आएगा ना? मतलब
क्या ये 5 मीटर नीचे होगा? कब? टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ना। अगर मैं टाइम t की वैल्यू को 2 पुट कर दूं, टाइम t की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं बच्चा? 2। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20। तो मतलब क्या इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर नीचे, इनिशियल पॉइंट से कितना नीचे बच्चा? Yes. 20 मीटर नीचे। ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर, और ये पार्टिकल यहाँ पे होगा। दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ना। अगर मैं इसी टाइम को 3 पुट कर दूं तो s3, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, दैट इज 45 मीटर। ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट से 45 मीटर नीचे। तो 45 मीटर नीचे मतलब यहां से कितना? 25 मीटर नीचे। दिस विल बिकम 25 मीटर, और ये आपका यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम 15 मीटर। ध्यान से देखना। तो दिस विल बिकम एस इज टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। नाउ अगेन ध्यान से देखो, तो S4 क्या लिखोगे तुम लोग? 5 × 16 ना बच्चा, दैट इज 80 मीटर। तो 80 मीटर यानी क्या? 45 से 80 जाने के लिए क्या आप लोग को लगेगा? 35 मीटर। बोलो बेटा। तो ये हो गया टाइम तुम्हारा, टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि S5 बताओ, S5 क्या होगा? तो S5 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी कि 125 मीटर। तो अब तुम बताओ यहां से, अब इसे कितना नीचे जाना पड़ेगा? क्या अब इसे जाना पड़ेगा 45 मीटर। 80 + 45 इज 125। तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। समझ रहा है क्या मैं क्या बोला बेटा? ये दिख रहा है? अब आप देखो, Yes. पहले सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना चला? 15 मीटर। तीसरे सेकंड में कितना चला? 25 मीटर। चौथे सेकंड में कितना चला? 35 मीटर। पांचवें सेकंड में कितना चला? 45 मीटर। तो याद रखो ये क्या बोला मैंने? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। ठीक है, अब दो दो सेकंड को क्लब करते हैं। तो पहले 2 सेकंड में कितना चला? तो पहले 2 सेकंड में चला 20 मीटर। अगले 2 सेकंड में कितना चला? अगले 2 सेकंड चला देखो, 25 + 35, दिस विल बिकम 6 मीटर। तो तुम मुझे बताओ अगले 2 सेकंड में कितना चलेगा? तो क्या अगले 2 सेकंड में चलेगा ये 100 मीटर? 45 + 55। क्या तुम लोग को ये पैटर्न समझ में आ रहा बच्चा? Yes, Yes. sir. है ना? पहले में चला 5, फिर 15, फिर 25, मतलब क्या 10 10 बढ़ रहा है, 10 10 इंक्रीज हो रहा है ना। तो 5, 15, 25, 35, 45, तो अगले 6 सेकंड में कितना चलेगा? इट विल मूव 45 + 55, तो इट विल बिकम 100। है ना? तो तुम मुझे बताओ, अगर 3 3 का लेके चलते तो भी क्या यही रेशियो बनता? अब इनमें रेशियो देखो, 26 क्या 1:3:5 का है ना? और 5, 15, 25, 35, 45, इसका रेशियो क्या बच्चा? 1:3:5:7:9। बराबर? अरे बेटा ये बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब कुछ बच्चों को आई थिंक ये आइडिया ना हो, तो मैंने आपको ये समझाया ना। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2। ठीक है, देन S2 इज इक्वल टू हाउ मच? तो तुम मुझे बताओ, इससे क्या आप देख सकते हो, अगर पहले 10 सेकेंड की बात करें तो 5 चला, अगले 10 सेकेंड में कितना चलेगा? तो अगर मैं पहले 10 सेकेंड में बोलूं S चला, तो अगले 10 सेकेंड में कितना चलना चाहिए बच्चा? 3S चलना चाहिए ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4S। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर पहले 10 सेकेंड में चला S, तो इसके अकॉर्डिंग अगले 10 सेकेंड में कितना चलना चाहिए? 3S। तो तुमसे पूछ रहा है ना कि S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड, सो दिस इज S2। दिस इज S2 विच इज इक्वल टू 4S। दैट मीन्स आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं बच्चा, कि S2 इज इक्वल टू 4S1।
क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. अगर बोलता कि S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड, तो आपका आंसर क्या होता? तब आपका आंसर हो जाता S2 इज इक्वल टू 3S1। सर ठीक है, सपोज हमने उसमें से S1 निकाला, और मतलब वो जो SN का फॉर्मूला है उसमें से S1 निकाला और S2 निकाला और दोनों को डिवाइड किया तो भी आंसर आ सकता है ना? यस यस, आ सकता है। बट जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखो। व्हाट विल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड? तो फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड का रेशियो कैसे निकालोगे? 1 इज टू 4, सॉरी, इज टू 5 इज टू 7 इज टू 9। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, तो आंसर आ गया ना 4:5। यस। समझा क्या? हाँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा वो समझा क्या, ये रेशियो? यस सर। So someone has Yes, asked sir. question number 20. Someone has asked question number 20. I think I've very much well explained question number 19. बराबर ना? यस क्वेश्चन सर। नंबर 19 के ट्रिक्स भी आपको समझा दिया कि याद रखना, जब भी एक बॉडी रेस्ट करके मतलब रिलीज होती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यू कैन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, in that situation in that situation what is going to happen बच्चा, कि every second in equal interval of time distance traveled will be in ratio of 1:3:5:7:9:11। that means odd number ratio रहेगा। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग नंबर क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं यहाँ पे। अ पार्टिकल मूव्स इन a straight line with a constant acceleration, changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second, then value of t। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 को आप इजिली, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको समझाया वहां से आप कर सकते हैं। क्या फिर से बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आपको दो स्पीड दे दिया, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड आपको प्रोवाइडेड है। 135 मीटर द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। तो आप क्या लिख लोगे? एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा? एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 135 अपॉन टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। ओके, सो दैट मीन्स यू कैन से टी, है ना, 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना होता है? 10 प्लस 20 अपॉन 2 15 होता है। तो 15 से अगर आप 135 को कट करोगे 9 आएगा। तो अपना आंसर क्या, टी की वैल्यू हो गई 9 सेकेंड्स। यस सर। समझा बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, डू नॉट ट्राई टू फाइंड एक्सेलरेशन, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर है? बट रिमेंबर ये क्वेश्चन के टाइप। 21 में चलते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ लाइन फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ a is equal to 5 meter per second square starting from rest, then uniformly and finally decelerating at the same rate a and comes to rest। ठीक है, the total time of motion is 25 seconds, average speed during the time is 20 meter per second, then how long does the particle move uniformly? Then how long does the particle move uniformly? Okay, okay, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है, कार है, वो पॉइंट ए से चला, एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, पॉइंट बी तक, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है पॉइंट सी तक, और फिर ये रिटार्ड हुआ, डिसेलरेट हुआ, और फाइनली स्टॉप हो गया एट पॉइंट डी। ठीक है, ये बातें हुई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिसेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर? ठीक है,
और साथ में ये बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उसका टाइम इन्होंने बता दिया है। द टोटल टाइम टेकन इज 25 सेकेंड्स, है ना? am I reading करेक्ट? यस। और साथ में बोल रहे हैं कि एवरेज जो स्पीड है, दैट इज एवरेज स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड टोटल टाइम इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली? तो आपसे पूछा टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला टाइम है तो ये वाला टाइम भी कितना होगा? टी होगा, बराबर ना? यस और नो? बोलो बच्चों, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 21 में यस सर। ए बी का जो टाइम अगर टी है तो क्या सी डी का टाइम भी टी होगा? क्योंकि अगर ये जीरो से स्टार्ट किया और Yes, यहाँ पे sir. इसकी स्पीड है वी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड थी वी और फाइनली कहाँ पहुंच गया? जीरो पहुंच गया। और एक्सेलरेशन की वैल्यू एक जगह 5 एक जगह -5 है, तो ये क्या होगा बच्चा? सेम ही रहेगा। और ऐसा है तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? देखिए, इनकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक है, वी एवरेज 20 मीटर पर सेकेंड। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 20 × 25, 20 × 25, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इज इक्वल टू 20 × 25, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए से बी तक चलने का, है ना? या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चा? 1/2 टाइम्स ऑफ 5 × t²। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी is 5t v into t, and then distance traveled from c to d is again 1/2 times of 5 into t²। क्या इतना क्लियर है? आई मेड अ मिस्टेक। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी को हम लोग लेते हैं कि इतने चला है टाइम टी नॉट, यहां से यहां तक का टाइम टी नॉट कंसीडर कर लेते हैं। अब इतनी बात क्लियर है क्या? Yes. इज दिस ओके टू एवरीवन? Yes. Yes, नो, sir. एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए। तो क्या v की वैल्यू जो है, जो v निकल के आया है, क्या इस v की वैल्यू होगी 5t? क्या इस v की वैल्यू होगी 5 × t? है ना? तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 500 इज इक्वल टू 5/2 t² प्लस 5t × t0 प्लस 1/2 × 5t²। ठीक है? Sir, अब देखो टी नॉट को आप और क्या लिख सकते हो? क्या आप टी नॉट को लिख सकते हो 20 - 2t, है ना? टी नॉट को आप लिख सकते हो 25 - 2t। क्लियर है क्या? सर 5t कैसे आया? 5t कैसे आया बेटा? इनिशियल स्पीड 0 है ना, हाँ और एक्सेलरेशन 5 है, हाँ सर। टाइम टेकन t है, तो v इज इक्वल टू हाँ u प्लस at के हिसाब से हम लोग लिख नहीं सकते? हाँ सर, हाँ सर, समझो। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 500 इज इक्वल टू, क्या 5t² और 5/2 t² हो जाएगा 5t² प्लस 5t, मैंने लिख दिया 25 - 2t, 25 - 2t। ठीक है? सो यू आर गोइंग टू गेट 500 इज इक्वल टू 5t² प्लस 125t
10t²। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक क्या है बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपका आ जाएगा 5t² माइनस 125t प्लस 500 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t² माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे आपको मिलेगा 20 + 5, है ना? आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 20 + 5। यस और नो? Yes. ठीक है, तो आपको दो वैल्यू मिल गई टी का, दैट इज 20 एंड सेकेंड विल बी 5। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, क्या पीछे साउंड ज्यादा आ रहा है क्या? नो क्या बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा है ज्यादा बज रहा है क्या? नहीं सर। ओके फाइन। क्या यार, ये चलो अब देखो यहाँ पे 20 और 5 है, तो तुम मुझे बताओ कौन सी वैल्यू टी होगी? क्या टी की वैल्यू 20 हो सकती है क्या? अगर टी की वैल्यू 20 हो गई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, No. है ना? क्योंकि अगर टी की वैल्यू 20 हो गया तो 20 + 20 तो 40 हो गया, टोटल टाइम 25 सेकेंड्स है, तो अपना ये तो गलत हो गया है। तो टी की वैल्यू क्या होगी? 5। तो अगर टी की वैल्यू 5 होगी तो टी नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो अगर टी की वैल्यू 5 होगा तो टी नॉट की वैल्यू तो अपने पता है ना, 25 माइनस 2t। तो दिस विल बिकम 25 माइनस 2 × 5। तो फाइनल आंसर विल बिकम आवर 15 सेकेंड्स। तो मतलब कितने सेकंड के लिए हमारा जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? इट इज ट्रेवलिंग फॉर 15 सेकेंड्स ओनली। क्या मेरी बात क्लियर बच्चा? क्वेश्चन नंबर 21 एक बार फिर से देख लीजिए ढंग से, नहीं समझा तो पूछिए। और बचे टाइम में जो बच्चे हैं वो 21 से लेकर के 40 के बीच में अपने सारे क्वेश्चन भेज दीजिए फटाफट। 21 से 40। 22, 23, 27, 30, 24, 22, 23, 24, 27, 30। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 22, 23, 24, देन 27, 25 भी आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया। ओके ओके ओके, 30 भी आ गया है। डन। देन चलो पहले इतना कर लेते, 30 तक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आपने इस पेज पे सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा। अ बुलेट इमर्ज फ्रॉम अ barrel of length 1.2 meter with a speed 640 meter per second, assuming constant acceleration. The approximate time that it spends in the barrel after the gun is fired. अरे बेटा ये देखो, क्या लेंथ दे दिया है, क्या आपकी फाइनल स्पीड है, क्या बुलेट इमर्ज की मतलब इनिशियल स्पीड 0 रहेगी, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट बोल रहा है बेटा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिखूंगा कि टाइम के लिए 1.2 मीटर चला, टाइम लेट अस से टी है, इज इक्वल टू 0 प्लस 640 डिवाइड बाई 2, बराबर ना? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320। सो टी की वैल्यू क्या लिखने को मिलेगी बच्चा? टी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 320। 1.2 डिवाइड बाई 320। लेट मी डू अ सर्टेन कैलकुलेशन। तो आपको वैल्यू मिलेगी ये
0.2 divided by 320, it is something around 3.75 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी बच्चा? 4 मिलीसेकेंड। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर क्या बेटा, जिसने भी पूछा था? Now coming to question number 23, a body moves for a total of 9 seconds starting from rest with a uniform acceleration and then with uniform retardation, which is twice the value of acceleration. Then stop. The duration of uniform acceleration is. So the duration of the body moves for total 9 seconds. अच्छा, बॉडी आपका क्या कर रहा है बेटा? देखो, इसको तो हम लोग लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। लॉजिकली सॉल्व करते हैं, अगर नहीं समझेगा मुझे रिपीट करने के लिए बोलने का। टोटल टाइम कितना लिया इन्होंने? टोटल टाइम इन्होंने लिया 9 सेकंड। अब मैं बोलूं एक्सेलरेशन हो रहा है ए से, रिटार्डेशन हो रहा है 2a से। एक्सेलरेशन हो रहा है ए से, रिटार्डेशन हो रहा है 2a से। तो तुम मुझे बताओ, एक्सेलरेशन तेज ज्यादा, रिटार्डेशन ज्यादा है ना? तो यहाँ पे रिटार्डेशन ज्यादा है, मतलब रिटार्डेशन का टाइम कम लगेगा, एक्सेलरेशन का टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये है ए एक्सेलरेट कर रहा है, 2a से रिटार्ड कर रहा, तो अगर यहाँ लगेगा टाइम टी, तो यहाँ लगेगा टाइम 2t। ऐसा है क्या? बोले बेटा, क्योंकि ये yes sir, चलेगा जीरो से यू पे, और जीरो से और वापस क्या हो जाएगा? जीरो। तो तुम खुद देख लो, यहाँ का अगर टाइम हमने लिखा है t1, तो यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा? t2। तो आप क्या लिख सकते हैं? t1 इज इक्वल टू यू बाई ए, एंड t2 के लिए आप क्या लिखेंगे? t2 के लिए आप लिखेंगे u या फिर v डिवाइड बाई 2a। तो अगर t1 की बात करें तो t2 इज बाई 2, यानी कि t1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ t2 है, बराबर ना बेटा? टोटल टाइम की वैल्यू कितनी है? टोटल टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 9 सेकेंड्स। तो तुम मुझे बताओ, एक्सेलरेशन करने के लिए कितना समय? 6 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? सर 2 टाइम्स टी समझा टू क्या बेटा? कैसे है? हाँ, T1 इक्वल्स 2 टाइम्स T2 कैसे? आप देखो ना इक्वेशन, t1 की वैल्यू क्या है? v बाई ए। t2 की वैल्यू क्या है? v बाई 2a। तो क्या तुम यहां से लिख सकते हो t1 बाई 2 इज इक्वल टू t2? तो t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2। समझा क्या? यस सर। अब इसको तो मैंने तुमको क्या बोला था? तुमको बोला है डायरेक्ट भी कर सकते थे ना? ये डायरेक्टली कैसे कर लेते? सॉरी। अब अगर इसे ऐड करना तो हम क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 2t2 प्लस t2 इज इक्वल टी, सो t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, देयरफॉर t1 इज सेकंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, हम इसे, मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि जब एक्सेलरेशन की चर्चा हो तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में हमेशा याद रखो क्या हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन चल रहा है, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है ए से, रिटार्डेशन हो रहा है 2a से, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो टाइम लगेगा, रिटार्डेशन वही टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिटार्डेशन डबल हुआ ना। अगर इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल रिटार्डेशन होता तो इक्वल टाइम लगते। इज दैट ओके? इज इट ओके बच्चा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले। What is question number 24 saying? A point initially at rest moves along x-axis. Its acceleration varies with time as a is equal to 6t plus 5 meters in square. Now if it starts from origin, then the distance covered in 2 seconds is. अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड की वैल्यू क्या होगी? ओके, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, बेटा यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। आपसे पूछा गया है
स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब आपको बोला गया है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड। चलो, ए आपको क्या दिया है बेटा? ए आपको गिवन है 60 + 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 24 acceleration is 60 plus 5। तो सिंस acceleration is 60 plus 5, तो आप क्या लिख सकते हो? dv by dt is equal to 60 plus 5। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं e is equal to 60 plus 5 dt। 60 plus 5, 60 plus 5 dt। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा dv को फ्रॉम 0 टू v, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब बॉडी स्टार्ट हुई तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखी हुई थी। टाइम t टू 0 टू t की बात हो रही है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 60 dt प्लस इंटीग्रल 0 टू t 5 dt। नाउ dt का इंटीग्रेशन तो t होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t² by 2 होता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा v फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू 6t² by 2 फ्रॉम 0 टू t प्लस 5t फ्रॉम 0 टू t। और सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा v, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 से 6 कटने पे 3, तो 3t², और फिर आपको मिलेगा 5t। ठीक है, बट ये हमारा डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट dx by dt। इंटीग्रेट So this could be written as dx is equal to 3t² plus 5t dt। अगेन आपको बोला है इनिशियली वो ओरिजिन पे, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t तक इंटीग्रेट करने पे आपको dx की वैल्यू में यहाँ पे आपको 0 मिलेगा और यहाँ पे आपको x मिलेगा। तो इंटीग्रेशन किया हमने, x मिला फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 3t³ by 3, ठीक है, प्लस 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 5t² by 2 फ्रॉम 0 टू t। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहां से x की वैल्यू हो जाएगी p³ प्लस 5/2t²। ना अपने को चाहिए क्या था? टाइम t इक्वल 2 सेकेंड पे। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स x2 विल बी 2 का क्यूब प्लस 5/2 इंटू 2²। तो ये यहां से कटेगा तो मिलेगा 2, तो वैल्यू मिल जाएगी बच्चा 8 प्लस 10 दैट इज 18 मीटर। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 24, 18 मीटर अपना आंसर हो गया। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। 25 देखिए, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस अनदर बॉडी, द सेकंड वन स्टार्ट and moves with a uniform velocity of 4 meter per second square. The time after which two bodies meet will be। तो देखो फिर से क्या बोल रहा है? A body is moving with uniform velocity of 8 meter per second when the body just cross with another body, the second one starts and move with a uniform acceleration of 4 meter per second square। The time after which the two bodies meet, जब दोबारा वो मीट करेंगे, then what will be, कब वो मीट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक बॉडी चल रही थी 8 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बॉडी एक्सिलरेट हुई है ना विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चा? 0। तो ये एक्सिलरेट हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर मैं बोलूं कि ये कुछ एक्स डिस्टेंस चलने के बाद दोबारा मीट करेंगे, अगर ये कुछ एक्स डिस्टेंस चलने के बाद दोबारा मीट करेंगे, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस एक्स, तो वो जो एक्स डिस्टेंस से दोनों ट्रेवल करेंगे वो सेम टाइम में होगा ना टी, वो दोनों क्या होगा बच्चा? सेम टाइम में होगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द टाइम आफ्टर विच द टू बॉडीज विल मीट, तो जब वो स्टार्ट किया तब ये चलना चालू कर दिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो सेम होगा, और टाइम टेकन भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहले के लिए, तो x फॉर a इज इक्वल टू x फॉर b
एंड x फॉर a आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई t, और x फॉर b आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, बच्चा 2 मिलेगा, एंड दिस विल कैंसिल 4। तो आपका आंसर जो होगा t की वैल्यू क्या वो 4 सेकेंड हो जाएगा। समझा क्या? बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है? Yes. Okay. So moving for question number 27. A train accelerating uniformly from rest attains a maximum speed of 40 meter per second in 20 seconds. It travels at this speed for 20 seconds and is brought to rest by uniform retardation in another 40 seconds. What is the average velocity during this speed? तो क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। ट्रेन स्टार्ट यूनिफॉर्मली स्टार्ट रेस्ट A train accelerating uniformly from rest attains a maximum speed of 40 meter per second in 20 seconds. It travels at a speed of 20, at this speed for 20 seconds and is brought to rest by uniform retardation further in further 40 seconds. Okay. Then what is the velocity during this speed? तो आपसे during this time होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है। तो अब तुम बताओ इस क्वेश्चन को, एक तरीका और है सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 27 को आप ग्राफिकली सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो अगर आपसे देखा जाए तो वीटी ग्राफ बोल सकता है ना, क्या बोलेगा वीटी ग्राफ, थोड़ा ध्यान से देखिए। वीटी ग्राफ में बोल रहा 40 मीटर पर सेकंड अचीव किया 20 सेकंड के लिए, फिर 20 सेकंड उसी स्पीड पे चला, फिर 40 सेकंड में रिटार्ड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहां से ये रीच किया इस वाली पोजीशन को, ये आपका हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और ये टोटल टाइम कितना बच्चा, ये वाला टाइम टाइम 20 सेकंड। फिर ये चला कांस्टेंट स्पीड से फॉर 20 सेकंड। तो अब आप चले 20 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से, फिर आप 40 सेकंड चले हैं रिटार्डेशन में। तो 40 यानी कि 20 प्लस 20 क्या, ये वाला टाइम आपका 40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप 40 सेकंड और चल रहे हैं, मतलब क्या 80 सेकंड्स हो जाएंगे। क्या ग्राफ समझ में आ गया सभी को? बेटा ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। No, sir. नो? ठीक है, अब तुम बताओ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग, तो हियर टोटल डिस्टेंस विल बी एरिया ऑफ द ग्राफ, एंड एरिया में क्या है, ट्रेपीजियम है ना। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे लिखते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, ये आपका हो गया 20, और ये है आपका 80। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 प्लस 80 इंटू इंटू टोटल हाइट दैट इज 20 होल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना बच्चा, 80। तो 20 से ये कट गया, यहाँ पे 10 आएगा। तो आंसर विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 80। दैट मीन्स आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 से कट करने पे 25 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या क्वेश्चन बेटा? सर बट ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई। हाँ हाँ सर, पीछे में 25 दिया है। 20 मीटर पर सेकेंड, आपने 20 मीटर पर सेकेंड लिया है। क्या?
मैक्सिमम हाइट उसका 40 मीटर पर सेकेंड दिया है, आपने 20 ओ मीटर पर सॉरी, सेकेंड दिया। सो सॉरी। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 40 बोला है ना, तो अगर ये 40 बोलेगा तो अपने को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 40। तो ये वैल्यू कट के 20 हो जाएगी, सो दिस विल बी आवर 20, एंड दिस इज 80, दिस इज 100। तो 20 से 80 कटेगा, दैट विल बी 4, 4 से 100 कटेगा 25। तो आवर आंसर विल बी 25 बच्चा। समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर ना? Okay. Now coming to question number 28. A particle starts from rest and traverse a distance L. अच्छा, इसे सर हम वैसे कैसे करेंगे? तो वैसे करने के लिए आपको हर एक पार्ट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले में आप क्या लिखोगे, पहले में आप एवरेज वेलोसिटी से डिस्टेंस निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देखो, क्या यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है 40 का, तो इसकी एवरेज क्या हो जाएगी, 0 + 40 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पहले का हो गया 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज, दूसरे का हो गया 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज, और तीसरे में तो आपको दिया ही है 40 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। ठीक, तो तीन डिस्टेंस आपको निकालने हैं। क्या निकालना हुआ बच्चा, 20 × 20 प्लस 40 × 20 प्लस 20 × 40 होल डिवाइड बाई 80। कैलकुलेट कर लो, अगेन आपको 25 मिलेगा। समझ में आ गई बात क्या? दिस एंड दिस विल कट 4, 20 + 40 + 40। ठीक है, 40 40 आपका क्या हो गया, 80, 100, 100/4, अगेन 25। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर, सॉल्यूशन। अब ये तीसरा जो मेथड है वो कौन सा बच्चा है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, दैट इज लेंथी मेथड। अगर आपको करना हो तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू ट्राई दीज टू मेथड्स ओनली। क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। A particle starts from rest and traverses a distance L with a uniform acceleration, then moves uniformly over a further distance 2L, and finally comes to rest after moving a further distance 3L under uniform retardation. Assuming entire motion to be rectilinear motion, the average speed over the journey to the maximum speed on its way is। ओ भाई, इतना लंबा लिख दिया इन्होंने। A particle starts from rest and traverses a distance L with a uniform acceleration, then move uniformly further 2L distance, and finally comes to rest, moving after 3L distance under uniform retardation, assuming entire motion to be rectilinear motion, and a ratio of average speed over the journey to the maximum speed on its way is। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को इक्वल कंसीडर कर लेना, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को आप इक्वल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को इक्वल कंसीडर कर लेंगे तो एक डिस्टेंस चला एल, दूसरा डिस्टेंस चला 3L, वहां से आप टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, स्पीड आपको पता है, रेशियो निकालेंगे। अगेन इट इज लेंथी, मैं बोलूंगा एक बार इसे ट्राई कर लो, नहीं समझेगा आप मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, हम ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं इसे दोबारा सॉल्व नहीं करने का मन बना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। A body travel with a uniform acceleration crosses 2 points A and B with velocities 20 meter per second and 30 meter per second respectively. The speed of body at midpoint of A and B is। तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन सर ने बताया है क्या आपको बच्चों? नो मिड सर। पॉइंट का क्वेश्चन क्या क्लास में सॉल्व किया है क्या आप लोगों ने? हाँ, नो सर। नो किया ना? सर। क्या है उसका फॉर्मूला बोलो, क्या उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, याद है? V1 V2, या तो क्या उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ V1² + V2² / 2, सर हुआ था क्लास वर्क में। है ना? तो उसका फॉर्मूला था V1² + V2² / 2। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, यस सर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर कवर्स अ डिस्टेंस 7x इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। कितना चल रहा है, 7x चल रहा है लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो x अगर पहले सेकंड की जर्नी है, 7x लास्ट सेकंड की जर्नी, देन हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। कितना समय लगा ग्राउंड को रीच करने का? तो एक बार बताओ, अगर x पहला है 7x बाद का है, तो
आखिरी सेकंड क्या होगा वो समझ ले क्या हम लोग, देखो 1:3:5:7, यही तो होगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये पहला x है तो आखिरी क्या हो गया 4x ना, तो कितना 7x ना, तो 7x कौन से सेकंड का है बच्चा, फोर्थ सेकंड का है, तो यानी कितना समय लगा 4 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कैसे किया रिपीट करूं? यस सर। हाँ समझा या नहीं समझा? यहाँ पे पहले सेकंड में चला x और आखिरी सेकंड में चला 7x, तो फिर हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने कहा 1:3:5:7, इसका रेशियो लिया, तो ये था x, ये था 7x, तो ये 7x हमारा फोर्थ सेकंड में है, तो अपना लास्ट सेकंड क्या 4 सेकंड, इसका मतलब चला कितना समय, 4 सेकंड चला है। दैट इज आवर आंसर। इज दैट ओके? लेकिन हम कर क्यों पाए, क्योंकि बॉडी जो है ड्रॉप करी गई है और अपना कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। दैट्स व्हाई वी कैन डू इट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31। इसको क्वेश्चन नंबर 29 नहीं समझा बेटा, एक बार प्लीज अपने बुकलेट देखिए, मुझे जहां तक पता है ये क्लास में आपको कराया गया है, वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा आसानी से, ठीक है। नाउ 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे।